Hi everyone and welcome to a new video. In this video we have Harnoor with us and what we'll be doing today is contributing to a few open source projects जो Google Summer of Code में इस साल आ रहे हैं. If you don't know Harnoor already, I'm sure most of you do. Harnoor, could you quickly introduce yourself? So, hi everyone. I have been a software engineer from the last 2 years. मैंने अपनी 4 years in 4 minutes video बनाई थी by getting inspired from Harkirat and just coding from the last 2 years. कभी switched companies and recently working at Microsoft, and it's an honor to do some Google Code of Summer problems with him. Wow, he's too kind. So so let's get right into it. Just to give some context, Harnoor primarily works in Android, and जानबूझ के what we've done here is we've chosen a framework that he's not very comfortable with because mostly I'm assuming if you're a student trying to contribute to GSOC तो तुमने अभी तक ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है, तुम्हें बेसिक चीज़ें आती हैं. So we're basically starting completely from scratch. We are going to choose an organization and a project जो React JavaScript इस stack में होगा, and we'll try to make Harnoor contribute to it, and then I'll contribute to an issue as well. Yeah, I'm ready for the challenge. मुझे JavaScript बिल्कुल भी नहीं आती है. I haven't installed the libraries either, but as he said, he's going to help me out. So let's see how it goes. Cool. Let's get right into it. To start with, let's try to go to Google Summer of Code's organizations page. मतलब पिछले साल जो organizations आई थी, the best way to do it is just search for Google Summer of Code previous year organizations. So past programs, right? There we go. Yep. And if you scroll, I think if you click on 2022 program, तुम्हें वहाँ पे सारी पिछले साल की organizations दिख जाएंगी. There we go. So if you scroll down, ये सारी organizations last year आई थी, and people who wanted to contribute or like people who participated in one of these organizations. And during GSOC, it's the best idea to choose one of these because most probably काफ़ी इसमें से repeat हो जाती हैं अगले साल. And since we want you to contribute to something you don't know much of, we can go to the top and we can use the filter to select some sort of a web application. End user application करके ऊपर दिख रहे हैं. If you look at the filters at the top, there you go. So I think these are all by end user applications. It means applications जो लोग in my client side पे use करते हैं. So here, feel free to choose any organization. So going through the list, मैंने काफ़ी use किए हुए हैं apps. For example, Audacity audio editing के लिए use किया हुआ है. Blender के बारे में सुना हुआ है. So it is really huge set. So जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, I want to open that. So let's say Matrix पकड़ लेता हूँ. इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता. Is that okay? Yep, let's do it. Matrix is, as it says, open source decentralized communication. It's basically a chat application. मुझे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि मेरी पिछली जॉब में इसकी काफ़ी बातें होती थी. So the next step here is looking at the source code of this organization. Yeah, so you can do that as well. If you click on 2022 projects, you'll see last year लोगों ने यहाँ पे क्या बनाया था. So these are like big projects that people did. But since right now we want to start contributing, the best step is to just go to their GitHub page or wherever they host their code and start looking at issues. Sure. तो source code के लिए I'll start with one of these codes. So ये GitHub पे नहीं है. तो let me find the GitHub one. So I'll say let's start with the links. एक करके लिंक खोल लेते हैं. यहाँ पे शायद लिंक हो develop. Go to develop and यहाँ पर one of these could be, but let's see if it is client server API. कोई रैंडम खोल के देखते हैं. ये भी GitHub पे नहीं जा रहा है. तो दिस इज जस्ट लाइक ट्यूटोरियल की इनकी लाइब्रेरीज कैसे यूज़ करते हैं. तो आई थिंक द बेस्ट वे कुड बी लेट्स गो डाउन एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं तो होना चाहिए. हाँ, यूजुअली आई वुड एक्सपेक्ट इट टू बी हियर. व्यू प्रोजेक्ट डिटेल्स पे जाते हैं. दैट इज ऑल्सो हियर एंड इसके बाद व्यू कोड and it goes to not GitHub. Yeah, exactly. So what's happening here is this is last year जिस बच्चे ने project किया था. It could be a standalone project जो उसने GitLab पे host कर दिया. So what we can do is either go to their website like you just did or just Google this, like just Google Matrix GitHub page and you'll probably land at the right GitHub org. तो मैं एक बार वेबसाइट पे फिर से ट्राई कर ही लेता हूँ. अगर आप कह रहे हो डेवलप में जाकर I think all of this is in GitHub. Maybe try searching for GitHub. Just search GitHub here. Nope. No, let's just Google. That's a good idea. Matrix.org GitHub. So here we go. There you go. So they have multiple projects. So which web project you want me to contribute?
या सो आई थिंक बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड के मतलब ये लोग करते क्या हैं थोड़ा मतलब यूजुअली ऐसा होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे तो इफ़ यू कुड गूगल व्हाट मैट्रिक्स डज और लाइक ओपन देयर एंड यूजर एप्लीकेशन which most probably I'm assuming is going to be a chat application because that's what they do. Maybe click on discover, just matrix.org, go to their main website and then Discover. if you click on discover, you'll, yeah. Introduction guide, yeah. Find projects, clients, there you go. There is clients at the bottom left of your screen. So if you click here, clients are basically जैसे Slack में एक desktop app होती है तुम्हारी फ़ोन में भी एक app होती है. You can go to slack.com as well. I'm assuming their product is very similar and they have a web client. So there you go. So मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल फ्लफी चैट ये सारी एप्स है बट इफ देयर इज अ वेब बेस्ड दिस इज एलिमेंट वेब दिस वन. Exactly. So this is one of their web-based clients that can talk to the Matrix backend servers. तो basically Matrix ऐसा है. Here's the GitHub link as well. There you go. Exactly. So let's. You want me to try the application first or just go to the source code first? If it's easy, okay, yeah, let's try the application real quick. So elements.io ही है I think इनका homepage. Get started or like sign in maybe. Google से sign in नहीं हो सकता इधर. Okay. So create कर लेता हूँ register. So should we get started? ठीक है ये तो yeah this seems like a very complicated product तो इस पे आ जाएंगे. Let's go to the GitHub page and let's just set up the project locally because ये तो लग रहा है कि चैट तक ले जाने में मतलब ये तुम्हें पूरा होम सर्वर सेटअप करवा रहा है कि तुम अपना चैट खुद से ही अलग से सर्वर्स खड़े करो. Correct. तो let's start contributing because हर प्रोजेक्ट अलग होगा. कई बार कोई बहुत अजीब सी एप्लीकेशन होगी. Without opening the application, let's try to contribute to it. Sure, without testing it because it seems very complicated. Sure, we can go ahead. So if we go to Element Web Desktop, we see the GitHub page right here. So we can just go from here. So हम GitHub page पे पहुंच गए. अब next goal is to check out the issues, right? If I'm right. Yep. Here you can see there are a lot of issues. So the best thing to do here is just filter them out by good first issues. So if you click on the labels, अच्छे projects में ऐसा होगा कि they would have labeled the beginner friendly issues as either good first issues. So if you search for good first issues here. Good for newcomers. So these, as you can see, are a bunch of issues. Now, a few thoughts that I initially get as soon as I open this is a sort of pseudo maintained project because इसमें 25 नवंबर बहुत अक्टूबर 3rd से इश्यूज़ खुले हुए हैं. बिगिनर फ्रेंडली फिर भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ गुड साइन क्योंकि तुम जल्दी से इन सबको वाइप आउट कर सकते हो एंड देन यू कैन गेट इन टू द आइज ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स और तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे जीसॉप में आने के बेसिकली. Got it. सो फील फ्री टू चूज एनी इशू दैट यू लाइक. नाउ मैं रैंडमली कोई भी इशू पकड़ लेता हूँ. सो लेट्स से कि ये बीच पे अभी सेंटर पे आया, सेंटर ऑफ स्क्रीन, इसे उठा लेते हैं. सो लेट्स गो थ्रू द इशू. क्या बात है, ओनली 3 लाइनर इशू. दिस इज एन एक्सेप्शन. इतने छोटे छोटे इश्यूज होने नहीं चाहिए कि ऐसे ही होते हैं बिगिनर फ्रेंडली. या दैट्स द थिंग राइट. ये गुड फर्स्ट इशूज़ में यूजुअली इतने छोटे मतलब कई बार तो ऐसा होगा कि एक कमेंट में टाइप होगा उसको फिक्स करना होगा. तो इट्स अ गुड वे टू गेट योर वर्ड आउट देयर कि हाँ तुम कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि उनको भी पता होता है इस टाइम पे जितने भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सब मोस्टली जीसॉक वाले हैं. तो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट. बट यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट बाय वन लाइन. खोदा पहाड़ या खोदी चूहिया क्या मतलब मुझे फ्रेज याद नहीं है. मतलब यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट. ये काम ज़्यादा भी हो सकता है बट लेट्स गो थ्रू इट. सो फ्रॉम द कंसोल इट सेज डेप्रिकेटेड एज ऑफ 10.7.0 हाईलाइट. तो ये बेसिकली कह रहा है कि ये मेथड हैज़ बिन डेप्रिकेटेड. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका लेटेस्ट यूज़ करें. इन्होंने सोल्यूशन भी साथ में दे दिया. तो अगर मैं सर्च करूँ क्या पता ये सोल्यूशन गलत हो. हमेशा हमें ऑप्शंस मल्टीपल यूज़ करने चाहिए. सो लेट्स से दैट दिस इज द कोड विच कुड बी डेप्रिकेटेड बट आई डोंट नो विच लाइब्रेरी इट इज़ फ्रॉम. सो उसके लिए पहले सर्च करना पड़ेगा राइट. आई डोंट इवन नो विच लाइब्रेरी इट इज़ यूजिंग. सो लेट्स In fact, they've given an issue there. Yeah, they just The given an third issue. line is actually the library. Oh, third line में oh yeah ये भी दिया हुआ है. ये देख ही लेते हैं. Good idea. So let's open this link. So the issue is this is the old library and this is the new library. तो हमारा गोल है कि इसे replace करना. अगर आप ध्यान से देखो what has been done is basically code पहले second parameter था. Now it has become first parameter. So order has been changed.
So our goal is to update that. And ये कौन सी library का part है to have a better understanding? Library. So it is part of switch the arguments. इन्होंने पूरा solution बता दिया है. हाँ. So this library, it seems like, is highlight.js, the project that you're currently on. Yeah, लिखा हुआ है यहाँ पे highlight.js, highlight API है. So this is the library. Correct. In fact, उस library के GitHub में अब तुम हो. So you're basically looking at the source code of that library. I see. So अभी ये जो source code था, तो अगर if I want to go into the project of this, what I'll have to do is मुझे यहाँ पर element web खोलना पड़ेगा. यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इस issue का कोड मिल जाएगा. अब what we can do is अभी क्या कर सकते हैं, पहले अब देख के देखते हैं कि हाईलाइट कहाँ यूज़ हो रहा है इस कोड में. तो हम क्या करते हैं, क्लोन कर लेते हैं. सो पहली बार कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. सो आई विल से गुड वे इज गिटहब डेस्कटॉप. उस पर सारे इश्यूज आते हैं. आई लव गिटहब डेस्कटॉप. मैंने डाउनलोड ही नहीं किया हुआ, मेरे पास था पहले. एनीवेज आई थिंक आई मे हैव डिलीटेड इट. लेट्स क्विकली डू इट. अगर आपको टर्मिनल से अच्छे से आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट इट टेक्स ओनली 1 minute टू इंस्टॉल. सो येस, लेट्स यूज गिटहब डेस्कटॉप. So now go to element again. Project बंद हो गया. So let's go from element web again. यहाँ से element web पे गए. अब code open with GitHub desktop. अभी खुल रहा है. Yep. So skip this step. अभी sign in करने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं. Cancel. शायद कर ही लेते हैं यार, अब इतना बोल रहा है ये. So yeah, open GitHub desktop, open. Okay, now we have option to clone it. I simply clone का button दबाया and I'm cloning it. I'm downloading basically the library. Exactly. Okay, we have the library here. ये मेरे documents folder में saved है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, I'll view in Finder. तो बेसिकली ये पूरी library में documents GitHub में है. So what I'm gonna do is मेरे पास Sublime है, it's light editor. यहाँ पे search कर लेते हैं. तो मैंने अभी drag and drop किया. अगर मैं यहाँ पे sidebar खोलूँगा तो यहाँ पे आपको पूरी लाइब्रेरी दिख जाएगी. इफ आई कैन सर्च हियर टर्म इज विच इज़ द लाइब्रेरी नेम. इट इज़ कॉल्ड हाईलाइट. द मेथड का नाम हाईलाइट है. तो मैं सर्च करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एफ. वाओ, 0 मैचेस. मैंने कोशिश की पूरी ढूंढने की, तो ये हाईलाइट इशू जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जिस प्रोजेक्ट के लिए मेंशन किया है, वहीं पे नहीं है. दिस इज शॉकिंग. तो अब मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही. मैं ये पहले इशू भी खोल लेता हूँ. तो इशू खोल लेते हैं, ये जो इन्होंने नीचे लिंक किया हुआ है. तो दिस इज सेइंग इम्प्रूव हाईलाइट API, और इन्होंने भी वही सोल्यूशन बताया हुआ है. अब मेरा फ़र्ज़ क्या है कि मैं ना थोड़ा रीडमी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है. सो लेट्स रीड द रीडमी ऑफ दिस प्रोजेक्ट. एलिमेंट्स वेब पे जाता हूँ. मैंने एलिमेंट्स वेब पे क्लिक किया. अब यहाँ पे नीचे रीडमी लिंक होना चाहिए, है. ओके. सो यहाँ पर एलिमेंट, फॉर्मली नोन एज वेक्टर एंड राइट, इज़ अ मैट्रिक्स वेब क्लाइंट बिल्ड यूजिंग रिएक्ट SDK. मैट्रिक्स रिएक्ट SDK. अब हो क्या सकता है ना, मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम राइट, ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी सारी SDKs, काफ़ी सारी लाइब्रेरीज यूज़ कर सकता है. क्या पता कि ये जो हाईलाइट वाला इशू है जहाँ पर हम पहले थे. सो लेट मी ओपन दैट अगैन. सो ये जो हम इशू सॉल्व कर रहे थे, क्या पता इसमें कोई लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, उसका पार्ट हो. राइट हरकत ऐसे कुछ है ना. तो अभी पूरा पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है. मुझे पहली लाइन में पता चल रहा है कि इसमें एक लाइब्रेरी जो यूज़ हुई है, इट इज़ मैट्रिक्स रिएक्ट SDK. अब यही खोल लेते हैं. तो एक एक करके खोलेंगे. पहले पहले ड्रॉप वाली खोल लेते हैं. अब क्या करते हैं, नीचे इसका भी रीडमी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. सो इसके अंदर थोड़े थोड़े मॉड्यूल्स हैं. अब क्योंकि मुझे पता है कि फाइंड एंड रिप्लेस इज़ वेरी पावरफुल. आप इसे भी क्लोन कर लेते हैं एंड इसमें फाइंड करके देखते हैं कि इसमें हाईलाइट है कि नहीं है. तो फिर रीड में अच्छे से पढ़ लेंगे. क्यों पढ़ना अगर हमारे पास जुगाड़ है. Exactly. And this is what Harnood did here is extremely powerful when you're starting to contribute. कि विदाउट, क्योंकि अगर तुम हर जगह घुसने लगोगे तो तुम्हारी मोटिवेशन ही बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी. तो हिट एंड ट्रायल करो शुरू में, एटलीस्ट फॉर योर फर्स्ट सेकंड थर्ड इशू, एंड उसके बाद थोड़ा डाइव करना शुरू करो. एब्सोल्युटली एग्री. अब ये प्रोजेक्ट भी मैंने क्लोन कर लिया. अब इससे करते हैं व्यू इन फाइंडर. अभी आपको गिटहब में, मेरे गिटहब फोल्डर में आ गया. अब ये गिटहब में सेकंड प्रोजेक्ट को मैं लेता हूँ. अब इसे भी मैं सबलाइम में डाल देता हूँ. सबलाइम एंड पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप. ओके, ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया. एंड यहाँ पर सेकंड प्रोजेक्ट आ गया. यहाँ पे मैट्रिक्स ये वाला आ गया. तो बेसिकली मैं इन दोनों को भी उड़ा देता हूँ. इसकी ज़रूरत नहीं है. रिमूव, डिलीट फोल्डर, नहीं डिलीट नहीं, रिमूव फ्रॉम सबलाइन करना था.
रिमूव फोल्डर फ्रॉम प्रोजेक्ट एंड रिमूव फोल्डर फ्रॉम प्रोजेक्ट. अब हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट यहाँ पे मैट्रिक्स SDK, मैट्रिक्स रिएक्ट SDK. अब यहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ सर्चिंग. ये क्या चक्कर है, यहाँ पे भी नहीं मिला, ये क्या हो रहा है? सो आई थिंक माई पर्सनल गेस इज कि अभी सबलाइम मुझे शक हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं मिला. मैं VS कोड भी खोल लेता हूँ. VS कोड खोलते हैं. एक बार गिटहब पे भी सर्च करके उसको, यू कैन एक्चुअली यूज गिटहब सर्च एज वेल. तो वहाँ पे एक बार ट्राई करना हाईलाइट सर्च करने का, टॉप लेफ्ट. टॉप लेफ्ट या. सो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हाईलाइट. हाँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है इन दिस रीपो. सो अब इन हाईलाइट्स था कि हाईलाइट था, यहाँ पे स्पेलिंग भी आ जाएंगे. हाईलाइट पूरे कॉपी कर लेते हैं. सो पेरेंथेसिस सर्च, और यहाँ पे सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है हमें, बट हाईलाइट फंक्शन डायरेक्टली नहीं दिख रहा विद पेरेंथेसिस. तो स्क्रॉल करो, मतलब बहुत सारी फाइल्स हैं बेसिकली. हाईलाइट है तो मतलब सबलाइम कुछ गलती कर रहा है, क्योंकि हाईलाइट कहीं ना कहीं तो है. हाईलाइट है पर हाईलाइट पेरेंथेसिस नहीं है. तो मैं सबलाइम पे दोबारा जाता हूँ. सिर्फ अगर हाईलाइट सर्च करके देखूँ तो कहीं ना हर जगह दिख रहा है मुझे. तो बेसिकली हाईलाइट तो है. माई सर्चिंग वॉज इनकरेक्ट. मैं तो सीधा फंक्शन दिख रहा था कि फाइंड रिप्लेस करके उसे रिप्लेस कर देंगे, पर ये इतना भी डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है जितना आप सोच रहे हो. तो कई बार ऐसा होता है कि आई मीन आई हैव, सो अगर मैं जैसे इसको सॉल्व कर रहा था तो आई वुड हैव हैड टू गेसेस कि एक तो मैं और लाइब्रेरीज ढूंढने लग जाऊँ कि इसकी यूजेज कहाँ है, या फिर इसमें मैं देख रहा हूँ जैसे गिटहब पे जब तुम थे, आई सॉ highlight.js imported somewhere. इफ़ यू गो बैक टू गिटहब, एक जगह तो highlight.js मैंने इंपोर्ट होता हुआ देखा है, सेकेंड फाइल में इनफैक्ट. ये रहा यहाँ पे. तो highlight.js ढूंढ लेते हैं. हाँ, दिस इज ऑल्सो नाइस. या लेट्स डू दैट. यही ढूंढ लेते हैं. तो व्हाट आई कैन डू इज कमांड शिफ्ट F highlight.js. अब ये हाईलाइट यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, ये मैं फाइल पे पहुँच गया. ये चेंज लॉग है, सॉरी ये नहीं. highlight.js. आई थिंक लेट्स यूज VS कोड. ये थोड़ा सा इतना क्लीन नहीं है. या VS कोड बहुत क्लीन एक्सपीरियंस देगा. सो मैंने डाउनलोड तो किया था. डाउनलोड्स में मैंने आई थिंक आई डिडंट कॉपी इट टू माई एप्लीकेशंस. ओके, VS कोड. मैक का ये बड़ा चक्कर होता है. एप्लीकेशंस, VS कोड. ओके, तो अब यहाँ पर मैं करता हूँ फाइल ओपन, डॉक्यूमेंट्स, गिटहब, मैट्रिक्स रिएक्ट. अभी मैंने प्रोजेक्ट खोल लिया है VS कोड में. नाउ सर्च अगेन, कमांड शिफ्ट F या कंट्रोल शिफ्ट F, हाईलाइट एंड पेरेंथेसिस के साथ. अब यहीं पे देख लो, VS कोड इज डेफिनेटली पावरफुल. यहीं पे मुझे मिल गया हाईलाइट फंक्शन यूज हो रहा है. तो लाइक, एंड दिस इज अ TSX फाइल. ये कोई वियर्ड फाइल होगी जावास्क्रिप्ट में. तो एक कमांड क्लिक करते हैं यहाँ पे, और ये गो टू डेफिनेशन, राइट क्लिक, गो टू डेफिनेशन. So we haven't yet installed hls.js जो वो import कर रहा है, right? तो and the good thing is we don't even have to. We know what the change is. I think you figured it out, right? कि argument आगे पीछे ही करने हैं. करेक्ट. तो हमें इसका यूज केस ऑप्टिमाइज करना है. हाँ, हमें लाइब्रेरी को चेंज नहीं करना, हमें इसका यूज केस चेंज करना है. तो फंक्शन मिल गया कहाँ का यूज हो रहा है. 3 यूज केस है, 1 2 3 एंड आई थिंक जितना दिख रहा है 2 ही दिख रहे हैं, 1 and 2. ये 2 जगह हाईलाइट फंक्शन यूज हो रहा है. बाकी जगह तो इट्स अ डिफरेंट हाईलाइट, राइट? Exactly. सो बेसिकली करना ये है कि यहाँ पे 2 पैरामीटर्स है. तो वापस कोड पे जाते हैं, एग्जांपल पे जो उन्होंने दी थी. सो यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है. सो यहाँ पे आ गए. सो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, ये जो कर्ली ब्रेसेस वाला है यहाँ पे पहले में था, अब उसे बाद में कर देना. बेसिकली कोड पहले, लैंग्वेज बाद में. सो व्हाट यू कैन डू इज VS कोड में गए एंड यहाँ पर ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो सेकंड वाला है उसे कट किया एंड पहले डाल दिया एंड देन कॉमा. एंड देन ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है. एंड देन सेम फॉर द सेकंड यूज़ केस. अब यहाँ पर सॉरी डबल क्लिक करता हूँ. हाँ, यहाँ पर वी कैन डू द सेम. सो एक मिनट, ये हाईलाइट डिफरेंट भी हो सकता है. ये highlight.highlight है एंड दिस इज इम्पोर्टिंग highlight.js. लेट्स सी कि ये करेक्ट लाइब्रेरी है कि नहीं. ऊपर देखता हूँ क्या इंपोर्ट किया इन्होंने.
इन्होंने हाईलाइट डॉट जेएस इंपोर्ट किया है. सो ओके, सो दिस कुड बी द राइट वन टू. दिस इज वी ऑन द राइट पेज. So Yep. yeah, so what we can do is same here. Yeah, I hope this should work. And हमने basically कोड को पहले कर दिया है and बाकी पैरामीटर सेकेंड टाइम में डाल दिया है. And what we need to do is go to GitHub and इसे commit push कर देते हैं. Yeah. GitHub खुला हुआ है and दो फाइल चेंजेस एक बार रिव्यू कर लेते हैं. फाइल नंबर 1 यहाँ पर ऑर्डर चेंज, मैंने कोई सिंटैक्स में गलती तो नहीं की, प्रेसेस सब एक बार जगह. could you just put them side by side? लेफ्ट पे जो उनका फिक्स है, राइट पे जो हमने किया है, जस्ट बेसिकली मूव द विंडो लिटिल बिट टू द राइट. तो हाँ, उन्होंने क्या किया है, पहले जो लैंग्वेज था वो सेकंड, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसको तो फर्स्ट सीधा सीधा कर दिया है ना, कोड को उठाया एज इट इज़ आगे रख दिया. बट जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था लैंग्वेज, वो सेकंड आर्ग्यूमेंट बनाए इनसाइड एन ऑब्जेक्ट. Oh, that is true. That is true. तो मुझे ऑब्जेक्ट में डालना चाहिए था, मैंने गलती कर दी. Exactly. Basically, the second. Yeah, I think you got it. Yeah. Yeah, I got it. Yeah, you're right. So मैंने जल्दी में I overlooked the details. So basically पहला जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, सेकंड वाला है, तो कर्ली ब्रेसेस सेकंड में आएंगे. एंड सेम केस विद द, मैंने सेव कर दिया कमांड एस. सेम केस यहाँ पर ये जो एडवर्टाइज्ड लैंग है ये कर्ली ब्रेस में आएगा. इट्स ए पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Am I right? Very close. So one thing is the key. I mean, these नई लैंग्वेज में मैं भी घुसूंगा. I mean, syntax confuse करेगा मुझे. This is a very syntactical issue. You got the thing right. The small detail that's left is JavaScript specific detail है ये. स्पेस आएगा. तो एंड स्पेस डाल सकते हो, बिना स्पेस के भी काम चल जाएगा. द थिंग इज की वैल्यू पेयर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में. मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, उसकी एक की होती है, एक वैल्यू होती है. अगर तुम इनका वो देखो तो लैंग्वेज जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है उसकी की है लैंग्वेज, वैल्यू भी है लैंग्वेज. जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसकी की है इग्नोर इलीगल्स, उसकी वैल्यू भी है इग्नोर इलीगल्स. व्हाट यू नीड टू so what you need to do is you have to give your object a key as well, and the key is always language. So basically this will look like language : exactly. तो लैंग्वेज में कंटेंट जाएगा, ऐसा है. एक बार वही मुझे लग रहा है कि एक बार इसको फाइल को रिफ्रेश करना एकदम जो इनिशियली थी है. ये इनिशियली ये इसमें गड़बड़ लग रहा है. इसमें ये इस फाइल में गड़बड़ लग रही है कि ऐसा नहीं हो सकता. कौन सी फाइल है ये? दिस फाइल इज सिंटैक्स हाईलाइट. तो सिंटैक्स हाईलाइट में गड़बड़ लग रही है कि मतलब मुझे लग रहा है कि ये पहले से ही करेक्ट हो सकती है, गड़बड़ शायद यहाँ पे हो ही ना कभी. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट सर. या राइट यस. यप यू आर राइट. तो मुझे भी यही लग रहा था क्योंकि लैंग्वेज कंटेंट तो होना नहीं चाहिए. सो लेट्स रिप्लेस चेंजेस. आप राइट क्लिक करके डिस्कार्ड कर सकते हो. सो आई पर्सनली थिंक कि यूज केस में जो इशू हुआ है दैट वाज ओनली इन द प्रीवियस वन. सो ये दोबारा इशू खोल लेते हैं. तो दिस वाज द इशू. तो इस इशू में आई थिंक एक ही जगह पर मिसयूज़ हुआ है. इन्होंने बताया नहीं, ऑब्वियसली दे वांट टू कीप इट हार्ड फॉर अस. एक ही जगह पे मुझे लगता है ये इन्होंने ना जानबूझ के इशू प्लांट किया है. एंड ये कोई ऐसे एक्सीडेंटल इशू नहीं है, ये प्लांटेड है. सही है, कंफ्यूज करने के लिए. हाँ, बहुत स्मार्ट है ये लोग. तो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एक प्रोजेक्ट में अगर लाइब्रेरी पुरानी यूज़ की हुई है तो हर जगह की होती है, पर यहाँ पर एक ही जगह की हुई है. सो वी कैन कमेंट. So we can say initial, or we can just say the change we did, update textual body dot txx. पर मैं usually क्या करता हूँ, issue number डाल देता हूँ. issue number है ये वाला. तो hashtag 1222 issue. So one small thing here. You issue number तुमने highlight.js से copy कर लिया. I think you should copy it from vector. Issue. नहीं इसी से copy किया. ये देखो ना, ऐसे highlight से ऐसे ही कह रहे हो. तो मुझे फिर दूसरे प्रोजेक्ट से, हाँ मुझे लगा था ये लिंक दूसरे प्रोजेक्ट का जाता है, पर यू आर राइट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, highlight.js से जाकर मुझे मैट्रिक्स वाले कोड में जाना पड़ेगा. मैट्रिक्स में जाकर यहाँ पे एलिमेंट वेब पे दोबारा जाते हैं, फिर मैट्रिक्स पे गए. अब मैट्रिक्स के इश्यूज में अगर ये इशू है कि नहीं अब ढूंढना पड़ेगा. नहीं, सो द थिंग इज रिएक्ट एसडीके के भी इश्यूज ओरिजिनल वाली मेन रिपो में ही फाइल होते हैं. अभी समझ नहीं आया क्या कह रहे हो आप. सो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेसिफिक चीज़ है ये कि ऑल देयर इश्यूज आर फाइल्ड इन द सिंगल रिपो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी लाइब्रेरी में वो है.
तो तुम यू वर एक्चुअली देयर ऑन द ओरिजिनल इशू. इफ यू प्रेस बैक 3 times, back in the window, one more time. There you go. This is the issue, right? This is the matrix elements web issue. So this is the number that you should be calling. आई सी, वो हाईलाइट वाला इशू था, समझ गया. सो दिस इज मैट्रिक्स वाला इशू में जाना है. तो बेसिकली इवन दो हम दो रिपोज हमने एक्सप्लोर की, बट दोनों रिपोज आप कह रहे हो एक ही का पार्ट होती है. इनके केस में ऐसा है कि इश्यूज ये एक ही रिपो में ट्रैक करते हैं सारे. परफेक्ट. तो ये इशू हमने डाल दिया नंबर, और यहाँ पे जो चेंज किया था वो डाल दिया. गुड पॉइंट. आई एम लर्निंग टू. सो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम डेवलप में तो करेंगे नहीं, एक नई ब्रांच बना लेते हैं. सो ब्रांच, न्यू ब्रांच. अब इसका नाम डाल देता हूँ. यूजुअली मैं क्या करता हूँ, इशू से ही बना देता हूँ. तो बेसिकली इशू का नंबर ये है, इशू स्लैश, यहाँ पे साथ में लिख देते हैं इशू. और इनका कुछ सिंटैक्स भी हो सकता है. अगर इनकी ब्रांचेस देखें, पुल रिक्वेस्ट देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे ब्रांचेस बनाई हैं. सो इफ़ यू टेक अ लुक एट दीज, सो इनका जो ब्रांच का नाम है, इधर एक कोई भी खोल लेते हैं, 2-3 ब्रांचेस खोल लेते हैं. लेट्स सी हाउ दे आर नेमिंग दी ब्रांचेस. तो इसका है रेनोवेट ऑल माइनर पैच, एंड देन इसका भी रेनोवेट है. तो एक और देख लेते हैं ब्रांचेस का नाम. रेनोवेट, हर एक का नाम लिखा हुआ है रेनोवेट. इसका डिफरेंट है. इसने नाम क्या दिया है, इसने ब्रांच का नाम दिया है हगन्स. इसने अपने यूज़र नेम स्लैश ये दिया है. तो हर कोई अपने तरीके से नाम लिख रहा है. तो मैं भी यही कर लेता हूँ, अपना नाम डाल देता हूँ, क्योंकि जिनका नाम हो क्रेडिट मिलना ईजी हो जाता है. सो मेरा यूज़र नेम है आई हरनूर, एंड इसके बाद मैं लिख दूंगा इशू एंड देन नंबर डाल दिया हमने. एंड देन एंड या इतना ही काफ़ी है. क्रिएट ब्रांच, ब्रिंग माई चेंजेस टू द ब्रांच, क्योंकि डेवलप में चेंजेस थे, अभी चेंजेस भी इसी ब्रांच में आ गए. एंड आई कैन कमिट, एंड देन वी कैन पब्लिश. ओ या मुझे फोक करना पड़ेगा बिफोर आई कैन पब्लिश, क्योंकि वो मुझे डायरेक्ट परमिशंस नहीं देते. आई हैव टू फोक इट टू कंट्रीब्यूट टू द पेरेंट प्रोजेक्ट फॉर माई, नो आई वांट टू कंट्रीब्यूट, सो कंटिन्यू फॉर दैट. एंड अब आई कैन पब्लिश, क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल में ये फोक कर चुका हूँ मैं. एंड आई एम गोना क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट नाउ. एंड अगर आप ध्यान से देखो कि फोक का मतलब बेसिकली ये है कि आप अपनी प्रोफाइल पे गए. सो इफ़ आई गो टू रिपोज हियर, आई विल बी एबल टू सी इट. मैंने फोक किया हुआ है. तो बेसिकली ये मेरे पेज पे, मेरे गेटअप पेज पे लिंक हो चुकी है. आई लव दैट फोटो ब्रो. अभी ये मैं 16 साल का था यार, कितना अब तक मैंने फ़ोटो नहीं चेंज की. It's nice. 8-9 साल हो गए इस बात को. Okay, so the PR is almost ready. This is pull request. Thanks for submitting. Please ensure this following requirement submit. ये सारे comments होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं. The checks return, test return, test इसकी ज़रूरत नहीं थी. It's a library change. Linter and other check pass, ये हमने किया ही नहीं. वैसे भी हमने देख ही लिया, वो spaces डाली हुई हैं कोड में. तो जैसे कि हमने highlight के बाद कर्ली ब्रेसेस के बाद भी स्पेस डाली थी, तो वो किया हुआ है. तो बेसिकली ये चेक हमने ऑलमोस्ट हमें टिक कर सकते हैं. साइन इन, साइन ऑफ विद गिवन, एंड लेट्स जस्ट क्रिएट पुल रिक्वेस्ट फॉर नाउ. एंड जब क्रिएट करोगे आप लिटरली यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपने ये किया. वैसे मैंने किया नहीं है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लाइक आई एम जस्ट चेकिंग इट मार्क, आई एम चेकिंग इट अवे, बिकॉज कि मुझे पता है कि आई एम लाइक कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट भी कह सकते हो, पर आई नो कि मैंने ये चीज़ें पास की हैं. साइन ऑफ मतलब कि इसके रूल्स होंगे contributing.md में, तो हमने ये रूल्स फॉलो किए कि नहीं. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमने थोड़ा सा चेंज किए रूल्स फॉलो किए ही होंगे. सो ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लाइक लेट्स होप कि ये हो जाए. कोड ओनर रिव्यू रिक्वायर्ड, तो ऑब्वियसली रिव्यू जब होगा तब ये पास होगा. एंड या दीज आर द बिल्ड, ये जो इसे कहते हैं CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट. ये सारे इंटीग्रेशन जो ऑटोमेटेड टेस्ट है ये पास होंगे. उसके बाद इनका रिव्यूअर रिव्यू करेगा, एंड देन आवर चेंजेस विल बी मर्ज्ड. और जब ये मर्ज हो गए तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया. राइट, परफेक्ट. या दैट्स यू गॉट इट. या सो ये चेक कर लेते हैं. और मैंने एक चेक मार्क डिलीट कर दिया, वो भी वापस ले आते हैं. अंडू नहीं होगा, आई थिंक अंडू नहीं होगा, पर हाँ लाइक आई एक्सीडेंटली डिलीटेड, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने वो किया नहीं. पर वैसे हमें पता है कि हमने सारे चेक पास किए. या सो लिंटर एंड CI/CD मोस्ट प्रॉब्ली जो नीचे बेसिकली रन कर रही हैं, वन ऑफ देम विल फेल. तो हमें पता लग जाएगा अगर हमारा लिंट में कुछ प्रॉब्लम होगी या CI/CD में हमने कुछ ब्रेक किया होगा. तो सो इफ एनी वन ऑफ दीज बिकम्स रेड,
then we can remove the check mark above. Ideally you should just test this on your machine. हमारे केस में हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो हमने, और मतलब तुम भी जब पहला इशू सॉल्व कर रहे होगे तो इतना टाइम नहीं होगा कि हाँ तुम सेटअप करो, इवन दो इवेंचुअली यू शुड. ये बहुत छोटा इशू था, तो इन दिस केस वी डिडंट रियली टेस्ट इट, तो दैट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट. एंड द सेकंड वन, आई थिंक उनकी वही कॉन्ट्रीब्यूशन की बहुत लंबी फाइल है. यू शुड गो थ्रू इट एंड मेक श्योर कि हाँ तुमने सही सही चीज़ें की है, देन ओनली चेक मार्क इट, एल्स डोंट. तो वो हम नहीं कर रहे हैं. द पर्पस वॉज टू शो यू हाउ टू कॉन्ट्रीब्यूट, मेक योर फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड आई थिंक Harnu did a phenomenal job here. So, You helped me a lot. Hope you had fun. Yeah, but thank you. एक पास हो गया, एक फेल हो गया. प्रीव्यू, ये डिटेल्स पढ़ लेते हैं क्यों फेल हुआ. यहाँ पे एरर आ गया. PR has none of the required changelog labels. हाँ, तो अब इसमें लेबल्स लूबल्स लगाने पड़ते हैं. मतलब ठीक है, हम तुम्हें घुसना चाहिए इसमें, इफ़ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. एक्चुअली GSOC में तुम्हें घुसना है, तो क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दैट सॉर्ट ऑफ, बिकॉज बहुत बिगिनर्स लोग इसी में छट जाएंगे, तो ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे कि हाँ लेबल्स, जैसे इसमें लेबल्स अटैच करोगे तो ये CI/CD पाइपलाइन पास कर जाएगी. तो या हर प्रोजेक्ट अलग होता है, इनका कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है. कहाँ पे ऐड करने होते हैं लेबल्स भी नहीं लगाए. कहाँ पे करने होते हैं? आई थिंक गिटहब में इफ़ यू गो टू दी पुल रिक्वेस्ट, वहाँ पे लेबल्स का ऑप्शन होगा टॉप राइट पे. इफ़ यू गो टू द पुल रिक्वेस्ट यू हैव क्रिएटेड लेबल्स, तो जैसे Z कम्युनिटी PR एक लेबल लग गया ना उसमें ऑटोमेटिकली. हाँ, सही कह रहे हो. तो एडिट ऐसे और यहाँ labels? पे. या इट सीम्स लाइक ये लेबल्स सिर्फ ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटर्स ही लगा सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, तो या वही फिर लगाएंगे. ऑटोमेटिकली लगते हैं. हाँ. एग्जैक्टली, जैसे इस केस में एक ऑटोमेटिकली भी लग गया, एक GitHub एक्शंस एज यू कैन सी ऑटोमेटिकली उसने एक लगा दिया था. तो मतलब वही यू कैन, इसमें तुम जितना डीप जानना चाहो जा सकते हो इसके आगे. प्राइमरी थिंग इज टू सॉल्व एन इशू विच Harnu did here. इसके बाद हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग होगा कि कुछ लोग तो GitHub पे भी नहीं होंगे, कुछ लोग GitLab पे होंगे, कुछ का खुद का ही SVN होगा, तो उसमें कोई अंत नहीं है कि हाउ यू कॉन्ट्रीब्यूट. कुछ लोगों को तो तुम्हें लिटरली ईमेल करनी पड़ती है अपने चेंजेस और फिर वो उसको मर्ज करते हैं. तो everyone is different when it comes to contributing, but let's see if this gets merged by the end of the video. तो मैं डाल दूंगा इनमें. Awesome, it was so much fun doing. Thank you for the opportunity. काफ़ी सीखने को मिला JavaScript के ऊपर. Awesome. Cool. Next time you should probably invite me and teach me Android on Yeah, your channel. sure. Cool, man. So this was a lot of fun. If you guys have any other questions and if you want to see more of Harnu, let us know and I'll see you in the next one. Yep. See you all. Thank you.